وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم، بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، سعودی عرب سے براہ راست نیاز ثالث کے ذریعے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف۔ خطے میں ٹینشن ختم کرنے کا مشن، وزیر اعظم کل تہران روانہ ہوں گے، ایرانی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول، سعودیہ سے کشیدگی کم کرنے پر بات چیت ہوگی، عمران خان مسئلہ کشمیر کی صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے۔ نواز شریف اور شہباز شریف، سمیع اللہ اور کلیم اللہ کا کھیل، دونوں گول کرنے میں ناکام ہیں۔ آج کا اجلاس بھی اسی کھیل کا حصہ ہے۔ مارچ کشمیریوں کے لیے نہیں، چوروں کی آزادی کے لیے ہے۔ فردوس عاشقاوان۔ آزادی مارچ پر نون لیگ کی مشاورت کا سلسلہ طویل، نواز شریف کے واضح موقف کے بعد شہباز شریف نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا، لیگی رہنماؤں کو قائد کے خط کے مندرجات سے آگاہ کیا جائے گا۔ آزادی مارچ کے حوالے سے پالیسی واضح، آئین کے مطابق چلیں گے تو کوئی اعتراض نہیں، حکومت مذاکرات بھی کرے گی لیکن احتساب پر ڈیل ہوگی، نہ کوئی شہر بند ہوگا۔ فواد چوہدری کا ٹویٹ۔ کار سرکار میں مداخلت اور پولیس سے ہاتھا پائی کا کیس، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو لاہور کی سیشن عدالت سے مستقل ضمانت مل گئی۔ آزادی مارچ کے قریب آتے ہی مقدمات میں تیزی آ گئی، لیگی رہنما۔ یہ ہمارے خلاف ایف آئی آر نہیں ہے، صرف اور صرف 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم کو جیل کے اندر رکھ کے ٹارچر کیا جا رہا ہے، خاندان کے لوگوں پر ایف آئی آر دی جا رہی ہیں، بیٹی کو اندر کر دیا، بھتیجوں کو بند کر دیا، نواز شریف صاحب کو بند کر دیا، اور جب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا آزادی مارچ قریب آتا جا رہا ہے، یہ ایف آئی آر سیاسی لوگوں کے خلاف کی جاتی ہیں۔ العزیزیہ ریفرنس سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل اور متفرق درخواستیں 29 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ مقدمہ سنے گا، کاز لسٹ جاری۔ پیپلز پارٹی کا آصف علی زرداری کی گرفتاری پر احتجاج کا پروگرام، رہائی کمیٹی آج پنجاب اسمبلی کے باہر کیمپ لگائے گی، قمر زمان کائرہ، چوہدری منصور اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی آمد متوقع۔ سٹیزن پورٹل پر شکایات کا ازالہ نہ ہونے کی شکایات، وزیر اعظم کا ایکشن، شہریوں کے معاملات کو بغیر نتیجہ نمٹایا نہیں جا سکتا، غلط بیانی یا کوتاہی کا ذمہ دار ادارے کا مجاز افسر ہوگا، عمران خان کی وارننگ۔ مقبوضہ وادی میں لاک ڈاؤن کا 69واں روز، زندگی معطل، گھروں میں قید کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ منقطع، غذائی بحران مزید سنگین، کرفیو کے باوجود جگہ جگہ احتجاج، قابض بھارتی فوج سے جھڑپیں۔ ڈینگی کی چڑھائی، انتظامیہ کی پسپائی، جڑواں شہروں میں مزید 254 افراد وائرس کا شکار، لاہور، فیصل آباد، ملتان اور دیگر شہروں میں بھی نئے مریض داخل، خیبر پختونخوا میں مزید 75 کیسز رپورٹ۔ خیبر پختونخوا گرینڈ ہیلتھ الائنس احتجاج کی ہڑتال کا 18واں روز، سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی کے علاوہ او پی ڈیز اور دیگر سروسز کا بائیکاٹ، دور دراز علاقوں سے پشاور آنے والے مریض خوار۔ شہر قائد میں تباہ حال، سیوریج سسٹم اور کھلے مین ہولز وبال جان، کئی بچوں کی جانیں جانے کے باوجود بھی انتظامیہ کی بے حسی ختم نہ ہو سکی، انسانی جانوں کے ضیاع کا ذمہ دار کون؟ کوئی تو جواب دے، شہریوں کی دہائی۔ ڈھکنے بھی نہیں ہے اور بچے گرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا گئے کہاں بچے، پتہ ہی نہیں ہے بچے گم ہو گئے، مینول پر ڈھکنے تو رکھیں۔ اسی طرح یہ بند ہو جائے سارا کچھ، کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بالکل بھی بہت پریشانی ہے۔ بچے بیچارے گر جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے ہمارے گھر اپنا گھر کا بچہ گر جائے تو ہمیں مطلب ہے نا، ہم تو مطلب جیتے ہی مر جائیں گے۔
कराची वाले गैर महफूज दिन दिहाड़े डकैतियां मामूल। नागिन चौरंगी मुस्लिम टाउन में स्कूल के बाहर खवातीन टीचर से लूटमार, मोटरसाइकिल सवार बैग्स छीनकर 9-11। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाज़े। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर मलिक। मैं हूँ मरियम ज़ीशान। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाजा की, खबरें तफसील के साथ बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। ईरान ने सऊदी अरब से जारी कशीदगी में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सालिसी की पेशकश का खैर मकदम किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सऊदी अरब से बराह रास्त यहाँ सालिस के जरिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था कि हथियार खरीदना सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं। सऊदी अरब को हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए और अमरीका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। उन्होंने सऊदी अरब से जारी कशीदगी को कम करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की पेशकश को सराहा। वज़ीर आज़म ईरान सऊदिया कशीदगी कम कराने के लिए कोशा हैं और ऐसे में वज़ीर आज़म कल ईरान जाएंगे, जहां उनकी हसन रूहानी से मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर आज़म मंगल को सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी क़यादत को दौरा ईरान पर एतमाद मिलेंगे। वफाकी काबीना इजलास की तारीख भी दौरा सऊदी अरब के बायस तब्दील कर दी गई है। आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास अब मंगल के बजाय पीर के रोज़ होगा। तो मिशन है ईरान और सऊदी कशीदगी कम कराना। इसी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान कल ईरान जाएंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर जट। उमर, बताएगा क्या स्केड्यूल होगा वज़ीर आज़म का ईरान के लिए? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म हमेशा से इस बात के लिए तैयार रहे हैं अमन हो और खिते में अमन कायम किया जाए, और इस हवाले से ईरान और सऊदी अरब का दौरा वज़ीर आज़म करने जा रहे हैं। शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म मंगल को सऊदी अरब जाएंगे और इससे पहले वज़ीर आज़म एतवार को यानी कि कल ईरान का दौरा करेंगे, जहां पर वो ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे और उनके साथ जो खित्ते में अमन और सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की जाएगी। कश्मीर का मसला भी वज़ीर आज़म वहां पर उठाएंगे। इसके साथ वज़ीर आज़म वापस आएंगे कल और फिर पीर के रोज़ काबीना का इजलास होगा और मंगल को वज़ीर आज़म रवाना होंगे एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब, और वहाँ पर वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे सऊदी क़यादत मोहम्मद बिन सलमान के साथ, और वहाँ पर जो पेशरफ्त होगी ईरानी सदर के साथ मुलाकात में, उस पर आगाह करेंगे और ईरान के दौरे पर एतमाद में लिया जाएगा। तो ये अहम दौरे हैं दो वज़ीर आज़म इमरान खान के, एक इतवार को ईरान का और मंगल के रोज़ आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा करेंगे। और इसी बायस सऊदी के दौरे के बायस ही जो काबीना का इजलास था 16 तारीख को, वो भी उसकी तारीख भी तब्दील की गई और उसे पीर के रोज़ रखा गया। और अब वज़ीर आज़म पहले ईरान जाएंगे, फिर सोमवार के रोज़ काबीना इजलास होगा और उसके बाद वज़ीर आज़म मंगल को एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो जाएंगे। तो वज़ीर आज़म, ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जट, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ, जबकि नैब की साबिक वज़ीर आज़म की सज़ा बढ़ाने के लिए दायर अपीलें 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। इस पर देखिए ये रिपोर्ट। अल अजीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म को सजा, नैब और नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत एक साथ होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नैब से 29 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच अल अजीज़िया रेफरेंस की अपीलों पर समाअत करेगा। जज अरशद मलिक वीडियो केस सामने आने के बाद नवाज शरीफ और नासिर भट्ट की मुतफर्रिक दरखास्तों पर भी उसी रोज समाअत होगी। नवाज शरीफ ने मुतफर्रिक दरखास्त में जज अरशद मलिक के बयान हल्फी पर दूसरे फरीक का मौक़िफ़ सुनने की इस्तदा कर रखी है, जबकि वीडियो का फोरेंसिक करने वाले बरतानवी माहिर समेत 5 अफराद को अदालती गवाह बनाने की दरखास्त की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की मुतफर्रिक दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी करके तहरीरी जवाब तलब कर रखा है। और अब आपको बताएं कि आज़ादी मार्च करीब आते ही हुकूमती वज़रा ने बयानात का सिलसिला तेज कर दिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि नवाज शरीफ की गुफ्तगू के बाद फजलुर रहमान के मार्च की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का खेल खेल रहे हैं, जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात भी करेगी।
फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च, हुकूमती वज़रा के हमले जारी। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ की गुफ्तगू के बाद फजलुर रहमान के मार्च की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। साबित हो गया कि इनका मार्च कश्मीरियों की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि चोरों की आज़ादी के लिए है। वो मजलूमों के लिए नहीं बल्कि करप्शन किंग्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का खेल खेल रहे हैं। कभी बॉल शहबाज शरीफ के पास होती है तो कभी नवाज शरीफ के पास। ताहम दोनों गोल करने में नाकाम है क्योंकि दोनों के गोल पोस्ट अलग अलग हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि जानते हैं फजलुर रहमान सियासी हलवे के शेदाई हैं, इसलिए वो इस्लामाबाद को लॉकडाउन न करें। आकाओं की खुशनुदी के लिए भारत के खिलाफ यौम सियाह को सियासत के लिए चुना गया। जानिब वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा, फजलुर रहमान के एहतजाज के हवाले से पॉलिसी वाज़े है। एहतजाज सियासी हक है। आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक एहतजाज पर कोई एतराज नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मौलाना से मुज़ाकरात भी करेगी, मदरसे के बच्चों को चारे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे और न ही एहतसाब पर डील होगी, न कोई शहर बंद होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की सरबराही में आज अहम मुशावरती इजलास होगा। नवाज शरीफ की जानिब से आज़ादी मार्च की हिमायत के वाज़े ऐलान के बाद मार्च की तैयारियों के लिए पार्टी लाहे अमल तय करेगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की आला सतह मुशावरत आज 2 बजे मॉडल टाउन लाहौर में होगी। नवाज शरीफ के खत के तनासुब में आज़ादी मार्च के लिए लाहे अमल तय होगा। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खत के मुंदरजात से पार्टी के रहनुमाओं को आगाह करेंगे। नवाज शरीफ ने मार्च के हवाले से जो हिदायत दी हैं उस पर अमल दरामद का प्लान बनाया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से मार्च में शिरकत और हिमायत के ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून मुतहर्रिक हो गई है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की तरफ से लिखे गए खत में वाज़ेह तौर पर पार्टी को हिदायत की गई है कि मौलाना फजलुर रहमान का साथ नहीं छोड़ना और हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में भरपूर शिरकत करनी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि 3 बार के वजीर आजम पर जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। आज़ादी मार्च के करीब आते ही मुकदमात में भी तेजी आ गई है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये हमारे खिलाफ FIR नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म को जेल के अंदर रख के टॉर्चर किया जा रहा है। ख़ानदान के लोगों पर FIR दी जा रही है। बेटी को अंदर कर दिया, भतीजों को बंद कर दिया, नवाज शरीफ साहब को बंद कर दिया। और जब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज़ादी मार्च करीब आता जा रहा है, ये FIR सियासी लोगों के ख़िलाफ़ की जाती हैं।